हेलो एवरीवन, ये वीडियो में मैं द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 23 पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 talks about no confession made by any person while he is in the custody of a police officer unless it is made in the immediate presence of a magistrate shall be proved against him। तो देखो सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 में हमने देखा था कि कोई भी कन्फेशन अगर आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो वो एडमिसिबल नहीं है। बट सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है या उसके कस्टडी में, बट अगर वहां पे कोई मैजिस्ट्रेट मौजूद है तो वहां पे वो कन्फेशन एडमिट किया जाएगा। Any confession given in the custody of a police officer in the presence of a magistrate will be proved against him. That means it will be accepted as an evidence. According to section 23 subclause 2 of the BS Act, a confession made by any accused of an offence while in the custody of a police officer is irrelevant unless it is made in the immediate presence of the magistrate. The object of section 23 subclause 2 is to prevent the abuse of the power by the police. The custody of a police officer provides easy opportunity of coercion for extorting confession obtained from accused persons through any undue influence being received in evidence against them. Under section 23 subclause 2, no confession made by an accused to any person except to magistrate while in custody of a police officer shall be proved against him. अगेन उसका ऑब्जेक्ट सेम ही है। क्यों डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर के सामने कोई एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाता है? क्योंकि वहां पे हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने कोerशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वो एक्यूज पर्सन से विदाउट हिज कंसेंट या विदाउट हिज वॉलंटरीनेस वहां पे उससे वो कन्फेस कर रहा है, मतलब जोर जबरदस्ती या फिर धोखे से वो कन्फेशन ले रहा है। बट अगर कोई एक्यूज पर्सन पुलिस के सामने कोई कन्फेस कर रहा है और मैजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद है, तो फिर वहां पे देखो पुलिस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कोerशन नहीं है, तो वहां पे उसको एडमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का मौजूद होना जब वो कन्फेस करे टू द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, तभी जाके वो कन्फेशन को एडमिट किया जा सकता है। In Bishwanath versus Dapo Devi, it has been held that in section 23 subclause 2 deals with confession made in presence of a police officer who has the custody of an accused, of a police officer who is in concern more or less in the investigation of the case, and those confession are absolutely excluded whether made to any police officer or to any other person unless made in the immediate presence of a magistrate. The proper construction of section 23 subclause 2 is one which excludes confession to a police officer under any circumstances or to anyone else while the person making it is in a position to be influenced by the police officer unless the free and voluntary nature of the confession is secured by its being made in the immediate presence of a magistrate, in which case the confessing person has an opportunity of making a statement uncontrolled by any fear of police. अब देखो ये लैंडमार्क केस में भी वही चीज कहा गया था कि अगर सिर्फ पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन एक्सेप्ट किया जाता है तो वहां पे हो सकता है कि पुलिस का दबाव हो सकता है वो एक्यूज पे। क्यों? क्योंकि वही पुलिस ऑफिसर वो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसको तो केस सॉल्व जितना जल्दी हो सके उतना करना है। तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बट जहां पे वो एक्यूज पर्सन वॉलेंटरीली कन्फेस कर रहा है अपने गुनाह को इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो वहां पे उसको एडमिट किया जाएगा। सो द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट हैज टू बी देयर टू एक्सेप्ट द कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस कस्टडी सेक्शन 23 subclause 2 of the BS Act considers the question under what circumstances was the confession made. If the answer is that the confession was made while the accused was in the custody of the police officer, the section 23 subclause 2 states that such confession shall be excluded from evidence unless it was made in the immediate presence of magistrate. The word custody is not defined in the BSA Act, but it implies that there must be some limit upon the liberty of the citizen, either directly or indirectly caused by police.
which may include arrest, detention, surveillance, or any restraint on his movement. It does not necessarily mean custody after formal arrest. It is sufficient if there is some form of police surveillance or restriction by the police on the movement of the person concerned. अब देखो यहाँ पे पुलिस कस्टडी की बात कर रहे हैं. पुलिस कस्टडी मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको अरेस्ट करके रखा हुआ है. उसमें अरेस्ट भी आ जाएगा, डिटेंशन भी आ जाएगा, सर्वेलेंस भी आ जाएगा. इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है आपके मूवमेंट को, आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को. तो जहां पे आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है बाय द ऑफिशियल ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, वहां पे आप कन्फेशन नहीं दे सकते, या फिर कन्फेशन दे रहे हो तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा. उसको तभी एडमिट किया जाएगा कि जब वहां पे कोई मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट है. हाँ, अगर किसी थर्ड पर्सन को आप कन्फेशन दे रहे हो अदर देन पुलिस ऑफिसर, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में एडमिट किया जाएगा. बट जहां पे पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दे रहे हो वहां पे मैजिस्ट्रेट का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है. कस्टडी यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जेल में डाल दिया गया, आप घर में ही हो बट सर्वेलेंस में हो, हाउस अरेस्ट हो, तो वो भी कस्टडी के डेफिनेशन में फॉल हो जाएगा. Statement made by accused person at the police station in the presence of a witness complainant is not admissible in evidence, and it cannot be used as a substantive evidence. Where a confession was made before the custom authorities while the accused was in police custody, it was held that confession was not admissible in evidence. The word custody used in section 23 subclause 2 is to be understood in the pragmatic sense. If any accused is within the ken of surveillance of the police during which his movements are restricted, then it can be regarded as custodial surveillance for bringing section 23 subclause 2 into operation. अब देखो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट एक्यूज्ड अगर विटनेस के सामने या कंप्लेनेंट के सामने भी दे रहा है, अगर पुलिस कस्टडी में ही कंप्लेनेंट को भी दे रहा है तो भी उसको एडमिट नहीं किया जाएगा. बट हाँ, जहां पे आप कोई पर्टिकुलर ऑफिसर को या फिर कोई पर्टिकुलर थर्ड पर्सन को कोई पर्टिकुलर कन्फेशन दे रहे हो जहां पे पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको एडमिट किया जा सकता है अंडर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. बट जहां पे भी पुलिस इन्वॉल्व है या फिर वहां पे रिस्ट्रिक्शन किया गया ऑन सच एक्यूज पर्सन, तो वहां पे वो कन्फेशन जो है एडमिट नहीं किया जाएगा अनलेस अ मैजिस्ट्रेट इज प्रेजेंट. तो यहाँ पे मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है, मतलब हमेशा एक्यूज पे दबाव रहता होगा ऑफ पुलिस ऑफिसर. जहाँ पे कोई भी कोerशन या फोर्स या दबाव नहीं है, वहां पे अगर वो फ्रीली वॉलेंटरीली कन्फेशन दे रहा है और मैजिस्ट्रेट मौजूद है तो उसको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट. Confession in the immediate presence of magistrate under section 23 subclause 2 of the BSA Act, a confession made to a magistrate in the custody of the police is admissible under section 23 subclause 2. The main consideration is the presence of the magistrate while making the confession. The presence of magistrate removes the fear and ensures the accused to make a free and frank confession without any fear. The presence of the magistrate affords some sort of guarantee and removes all sorts of fear from his mind and ensures to make a voluntary confession. तो देखो सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब वहां पे मैजिस्ट्रेट का मौजूद होना जरूरी है. अब देखो मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों कन्फेशन एडमिसिबल है, क्योंकि सबसे पहले तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आ जाता है, मतलब जज के सामने ही वो प्रोसीडिंग्स में आप वहां पे कन्फेशन दे रहे हो. दूसरा, जज के सामने आपके ऊपर कोई डर या दबाव नहीं होगा पुलिस ऑफिसर का. क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर भी सबऑर्डिनेट है टू द मैजिस्ट्रेट एंड टू द जज. तो वहां पे मैजिस्ट्रेट हायरकी में, तो उसके सामने अगर कोई आपके ऊपर दबाव कर रहा है तो वो उसको डांट सकता है या फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकता है. तो मैजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई एक्यूज पर्सन फ्रीली एंड वॉलेंटरीली कोई कन्फेस कर रहा है टू द पुलिस ऑफिसर बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो वहां पे वो एडमिट किया जाएगा. A confession is admissible without proof when it is made before a magistrate following the procedure under section 183 of the BNSS Act and can be looked into even when it goes in favor of the accused.
but where the magistrate failed to ask any question to the accused relating to his making the confession voluntarily, it could not be relied upon for conviction. अब देखो, जहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दिया जाता है उसको तुरंत ही एडमिट किया जाएगा, वहां पे सपोर्टिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। बट जहां पे सेक्शन 183 ऑफ बीएनएसएस एक्ट क्या कहता है, प्रोसीजर बताता है कि उसको कैसे एडमिट किया जा सकता है अंडर द क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल एक्ट के अंदर जज को जब भी कोई कन्फेशन दे रहा है, कोई एक्यूज पर्सन कन्फेशन दे रहा है टू द जज, जज को ये बोलना जरूरी है कि आप जो भी चीजें यहाँ पे बोलेंगे वो आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। whatever things that you are going to speak will be used as an evidence against you in the court। यहाँ पे ये चीज उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, मैजिस्ट्रेट को ये चीज इन्फॉर्म करना होता है टू द एक्यूज पर्सन। अगर यहाँ पे वॉलेंटरीली कन्फेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से रिलेटेड अगर कुछ मिस आउट हो चुका है बाय द मैजिस्ट्रेट, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वेदर दैट कन्फेशन वाज वॉलेंटरी और नॉट, और वेदर एनी फोर्स वाज इन्वॉल्व फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर, तो फिर वो कन्फेशन पे रिलाई नहीं किया जा सकता। अदरवाइज उसके अलावा जब भी कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दिया जाता है, हालांकि भले ही पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है बट वहां पे मैजिस्ट्रेट मौजूद है तो उसको एडमिट किया जाएगा। When confessions are admission, according to section 23 subclause 2 of the BS Act, a confession made in the police custody in the presence of a magistrate is admissible। तो देखो सेक्शन 23 subclause 2 क्या कहता है, कन्फेशन जो पुलिस कस्टडी में दिया गया बट वहां पे मैजिस्ट्रेट मौजूद था, इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल। तो सेक्शन 23 सबक्लॉज 1 कहता है अ कन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल, बट वहीं पे सेक्शन 23 सबक्लॉज 2 कहता है दैट एनी कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी बट इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 23 सबक्लॉज 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 23 के थर्ड पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थैंक यू।